Namaste Mitro. Hearty welcome to all of you for this fifth episode of Musical Musings Season 2. It has been a wonderful journey even during my first season, and even the second season is really going on very well with uh, great support and blessings from all my guests, because all of them are very senior most musicians of our country. And today I am really happy and I feel privileged that Pandit Kaivalya Kumar Guravji is our guest today. I normally don't speak about the guest because most of you know about them. You know their musical whatever they have achieved in music field, and so it's not about their biodata or something, but one of the most erudite musicians, very very knowledgeable, and I can say a person with lot of conviction. So Kaivalji, I have been looking up to him since last 3 decades because I come from the same state. I am from Karnataka. Kaivalji is also from the same state. So without going into lot many details about him, I will now invite Pandit Kaivalya Kumar Guravji to join us in this interactive session. Namaskar. नमस्कार जी, नमस्कार. Thank you so much for your time, for joining me and blessing all of us, all the viewers who are watching this episode. Okay. Yeah. Kaivalji, we all know that you come from a musical family which has a Yes. rich musical background. Yeah. My grandfather was a direct Ask disciple about of Abdul. your GS. I wanted to know about your grandfather. Yeah. Actually, my grandfather was a state GS. musician in Oh, the state of in the court of Maharaja Patwardhan in Jamkandi in Bijapur district. okay. Okay, and he ran away to Mumbai because Okay. his parents insisted him to join the police department. He was already selected. So Okay. he was not at all interested in that, and he ran away from the house, and he straight away went to Mumbai and met with Abdul Karim Khan. And then Wow. his lesson started. And he used to teach everything, and after a month, he used to give 1 rupee to my grandfather. अब्दुल करीम खान साहब जी वही इनको 1 रुपए दे देते थे क्या बात है. खर्चे वाह. के लिए देखिए वो Oh, जमाना कैसा था और जी. कितने प्यार से सिखाते थे और प्यार से सीखते भी थे. जी. जी. उससे पहले मेरे दादाजी he got lessons under Bhaskar Bua Bakle. Wow. So he was the stalwart of three gharanas. Yes. Gwalior, Jaipur and Agra. Agra. So Yes. then he shifted to Abdul Karim Khan sir. That is the reason we have that lot of bandishes in our this thing. वाह वाह. One of the और जो interviews हम जो गाते I हैं बहुत अनकॉमन बंदिशेस हैं जो कॉमन जी. बंदिशेस में कभी गाता ही नहीं. इतने बंदिशेस है हमारे पास तो जी. कॉमन गाने की कोई जरूरत ही नहीं है. जी. 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 स्पेशली मैंने आपका एक इंटरव्यू में सुना है कि आपके दादाजी, one of the biggest contribution what I felt was that he Yes. has written all the bandishes with notations. Yes. That is That was really the amazing. best, really amazing. And he is uneducated, but still he could write perfectly.
In Marathi, he has written, but he has written so nicely. It is very easy to note each and every bandish. वाह वाह. हाँ. और my grandfather was of opinion that one should know a minimum 7 to 8 bandishes in each and every raga. वाह. क्योंकि हर एक बंदिश का भाव अलग होता है. यस. उसी भाव से वो गाना है. अगर हमने ले लिया कि हम अभी यमन गा रहे हैं, तो एक बंदिश से काम नहीं चलेगा. यमन के तान हर एक बंदिश में नहीं चलता है, क्योंकि बंदिश का डिमांड अलग है. जी. समझ गए आप? क्योंकि जी. इसीलिए 4-5 बंदिशें आप गा लेंगे, तब पता चलेगा कि इस बंदिश का भाव क्या है. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस बंदिश. तो इसके लिए एक राग को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है. क्या बात. हाँ, प्रसन्न जब हो जाएगा तब वो राग निखर के बाहर आ जाएगा. वाह. जब तक गले में तासीर पैदा ना हो तब तक गायक गवैया नहीं कहलाता. स्वर का दर्शन होना बहुत जरूरी है. स्वर का दर्शन कैसे हो सकता है, ये अभी आपका सवाल होगा. स्वर का दर्शन मतलब क्या? पहले सिस्टम्स है इसमें. एक पहले स्वर को वलय ले आना है. यू हैव टू सर्कल द नोट. जब स्वर को वलय आएगा तब स्वर जाके प्रकाशित होगा. वाह. स्वर प्रकाशित हो जाने के बाद स्वर सिद्धि हो जाती है. स्वर सिद्धि के बाद स्वर समाधि होती है. तो एक गायक को सिद्ध करना है, अपने आप को सिद्ध करना है. तो इस जर्नी में वो उसको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है. सब नेचर में है, उसके अंदर है. हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, देखने की दृष्टि नहीं. हर सब कुछ भगवान ने दे रखा है निसर्ग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सब गाना निसर्ग में है. निसर्ग में क्या नहीं है, सब कुछ है. लेकिन हम देखते नहीं है. जी. देखने की वो दृष्टि नहीं है हमारे पास. जी जी. क्या बात है. अभी एक गुरुजी के पास या पंडित जी के उस्ताद जी के पास आप कितने साल सीखेंगे, ये मेरा सवाल है. कितने साल तक आप सीखेंगे, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी गायक बन गया. What do you answer? This is the question for you now. So, how many years, according to you, how many years we should learn under a guru or a pandit ji or a ustad ji? At least 10 to 12 years of rigorous training. Okay. Yes, rigorous, that is there. But there should be individual thinking. Wow. Individual thinking should be there. Otherwise, you will not be an artist. Correct. See, आज गुरु ने पढ़ाया, अभी उसके बारे में आप घर जाके विचार करो. जो भी शिष्य है, घर जाके विचार करना है कि आज गुरु ने क्या सिखाया हमको. जी. क्या सिखाया, और इस जो चीजें उन्होंने आज सिखाई है, इसमें से मैं क्या जानता हूं और मैं क्या नहीं जानता हूं. क्या बात है. इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है. आइडल लर्निंग इज नॉट एट ऑल यूजफुल इन. यही होते आया है. जस्ट गुरु से प्रैक्टिस इट, विल प्रैक्टिस आइडल. So no questions behind that, no individual thinking behind this. So then how your music will flourish. True. And that is important, isn't it? Yes. तो एक बार आप विचार करना शुरू कर देंगे, तब पता चलेगा कि आपकी क्या गलती है. जी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरुजी का या पंडित जी का गलती निकालने के लिए, ऐसा नहीं है. कि खुद कहाँ हो, where you stand in this music field. And where you stand in front of your guru, whether you have the capacity to grasp all the knowledge of the guru, you have that capacity or no. Who is going to ask this? You have to ask for yourself. कोई नहीं बताएंगे, ऐसा गुरु जी कोई नहीं बताएंगे आपको कि नहीं आपका ये ठीक है, ठीक चल रहा है, चलने दो. ऐसा थोड़ी होता है. आपको खुद डिसाइड करना है.
हेलो। Sorry, there was ओके, या इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। yeah. Yeah. तो खुद को आपको पहचान देनी है। जी, बी लॉयल टू योरसेल्फ। आपके पास कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं और कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये आप खुद को पता चलना चाहिए। क्या बात आप किसी को मत बताइए, लेकिन आपको पता चल रहे हैं। एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन नेगेटिव पॉइंट्स एंड नॉट ऑन पॉजिटिव पॉइंट्स। यही तो गलती हम करते हैं कि हमारे पास अगर मंत्र सप्तक का आवाज है तो उसी में बैठ जाते हैं, जिंदगी भर उसी में बैठ जाते हैं, क्योंकि आनंद मिलता है ना, जी, आनंद मिलता है। और हमें लगता है कि अरे यार, मेरा तो ये बाजू स्ट्रांग है, इसको और स्ट्रांग बनाते हैं, इसको और स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रांग बनाते 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 ऊपर का सब तक वीक हो जाता है ना, उसमें क्या है, उसका विचार कौन करना चाहिए? वाह, हाँ, वी हैव टू थिंक दैट। So yes, we have very to true. equally justice should be given to each and every octave. मंद्र, वाह, मध्य एंड तार। तार, वाह, हाँ, जितना तार वाह, में जाता है उतना मंत्र में जाना ही चाहिए। क्या बात, ऐसे नहीं है कि मेरा मंत्र में जाता है इसलिए मैं मंत्र में जा रहा हूँ, ऊपर ने मेरा जा ही नहीं रहा इसलिए मैं ऊपर, ये गलत है। यू हैव टू मेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वाह, करेक्ट, और क्या आराम बात, से आप पहुंच सकते हैं जी, प्राणायाम के द्वारा। जी, इसके जी, बारे में मैंने बहुत खोज किया है, योगा एंड जी, प्राणायाम, एंड जी, हाउ इट इज यूजफुल फॉर म्यूजिक। yeah. We'll come जी, to that topic in the later ओके part. ओके ओके। Because why I said कि आपके दादाजी का वो सबसे बड़ा contribution है, क्योंकि उस जमाने में संगीत मतलब सिर्फ मौखिक विद्या होती थी, सिर्फ बिल्कुल गुरुजी ने ये बिल्कुल बताया और शिष्य ने बिल्कुल। सीखा, उसमें सैया हुआ पिया हुआ वो हाँ, बस 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 वही है। जो भी गुरु ने बोला वो गाया जाता था। गाया। लेकिन because that is why I felt that to notate it as well as to write so many bandishas. I mean, as Yes, you said, Bhaskar Bua was also a very good prolific. yes, He had composed so many bandishas also. yeah. So to do that, it was really to know that your grandfather did such a great job of notating Yeah. everything and writing those. Then Ambitious, yeah. we'll talk a little bit about your father, the great Pandit Sangameshwar Guruji, whom I have seen personally Hmm. many times. I had the privilege of taking his blessings. Uh, can you tell how the talim started to you? Were you interested in music from earlier days, No, or how did it come to your? a very good question you have asked. I was not at all interested, as I was in a convent school. So I Okay. was not at all interested in music. I used to sing only Bollywood songs and discos and all in Oh, my school days, till my college okay. days, you can say. Oh, So okay. one day, my father's friend came from Mumbai. Okay. So then he asked me. I was just sitting there, and he came and he asked me, "What are you doing?" So I'm saying I'm doing my education. That everybody does. I am asking about music. What you are doing in, because your grandfather, your father are such a big stalwarts of music, and what you are contributing in music. I said I don't like Hindustani music. Then he Oh, said, what? Yeah, I was right from the childhood. I am straightforward. क्या बात है? Yes, right from the childhood. I am very straightforward. Then I said, I don't have any interest. Then he said, why don't you have interest? Because when I hear musicians, they take a lot of trouble, they'll take a lot of pressure, and that pressure is seen on their face. Music is meant for pleasure and shanti. And when that is not there, then why should I sing? जब तकलीफ हो रहा है, गाते समय जब तकलीफ ही हो रहा है, तो उसको गा के फायदा क्या है? अरे खुद आत्मा शांति के लिए, आनंद के लिए गाना है। तो वही चीज मौजूद नहीं है, तो फिर गाना लेके क्या करें? उस समय मैंने उनको ये कहा। And he said, so I have brought some Bal Gandharv Natya Sangeet. He had carried some Natya Sangeet with him.
Then he said, I will play one Natya Sangeet for you. So can you repeat it? Then I said, no problem. You just let me listen to that recording. Then he played for me. Then he said, I want to listen one more time. So again he repeated. And the third time I repeated as it is exactly. Wow. Then he was so stunned, you know. And he said, what are you doing? And he said, oh, what happened? And did anything went wrong? Arey, no, Baba, you have extraordinary talent, and why you are singing film songs and all? Then what should I do? You start singing Natya Sangeet. Then he told my father, he convinced my father, see how talented your son is, why are you not teaching? My father's answer was, he is not hungry at all. So when he is hungry, I will give him the food. क्या बात. Until and unless he is not hungry, I am not going to feed him. So let him come. So then I started my musical journey with Natya Sangeet in the year 1980. And for 2 years, I was singing only Natya Sangeets. Oh. And already programs started. I used to give programs in Ganapati festivals and all. And small programs, I already started giving only Natya Sangeet. Huh? Then all of a sudden, one day I realized, so what I am doing is not correct. It's not fair for me. I have to jump in the sea now. I have to jump in the ocean of music, and I have to search something, and I have to give something else to this music field and to this world. A new thoughts, easy way of learning music. So from that day, I jumped, and still I am swimming. I have not got anything, but the journey is on. Wow, क्या बात है. How was your father as a guru? Very strict, very strict. I never felt that he is my father when he was teaching. Never. एक स्वर अगर गलत से लग जाता था तो यहाँ आके मेरे इसमें ऐसा पिंच कर देते, वो देखो थोड़ा, देख लो. कभी बताते नहीं थे कि ऐसा लगाना चाहिए, खुद को ही ढूंढना है, रास्ता खुद ढूंढ लो. तो यहाँ तो पेन हो जाता था, लेकिन अभी गंधार कैसे लगाना है, स्वर लगाव इतना बढ़िया उन्होंने सिखाया कि स्वर लगाव से सब कुछ हो सकता है. स्वर लगाव ही इंपॉर्टेंट है कि लगाना कैसे है स्वर, कि वो सुर कंप्लीट 100% डूबना चाहिए. ऐसे नहीं है कि वो दूर से हम उसको बाय बाय कर दिया, नहीं, वो स्वर खुद बुलाना चाहिए हमको. हाँ, मैं यहाँ हूं, आओ बेटा, मैं यहाँ हूं, ऐसे पैदा करो आप, ऐसे इस तरह से ढूंढो स्वर को, क्योंकि स्वर ही ईश्वर है, इसी में सब समा है. और ये गाना जो है हमने कमर्शियल बना दिया है पेट के लिए, लेकिन है आध्यात्मिक, और उसके लिए है, खुदा के लिए है, भगवान के लिए है. अब भगवान का गाना कुछ अलग होना चाहिए ना. आम आदमी के लिए गाना अलग होगा तो भगवान के लिए भी वही गाना गाओगे. क्या बात, कुछ अलग. हाँ, कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए. डिफरेंस है ना उसमें. अभी कमर्शियली आप तालियां ले रहे हो, गिरगिट तान ले रहे हो, नोटेशन कर रहे हो, तालियां ले रहे हो, बार बार तालियां ले रहे हो, ये तो गिमिक्स हो गया. क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 लोग समझते हैं, 80-90 लोग समझते ही नहीं है. ऐसे ही आ जाते हैं सुनने के लिए, बस वो तालियां बजे हो गया, प्रोग्राम सक्सेस हो गया. अरे प्रोग्राम में तालियां क्यों ले रहे हो, शाश्वत तालियां कब मिलेंगे, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है. शाश्वत ताली चाहिए ना, उसके पीछे दौड़ना है. अरे गिमिक्स तो 2 मिनट का काम है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कंट्रोल है हमारे. एक बार सब कुछ कंट्रोल में आ गया, कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन वो रास्ता नहीं है, वो आपको सुख नहीं देगा वो रास्ता. जी, क्या बात. तो आपके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे सिखाने में, और आपको हाँ, वो एक ही बार गा के दिखाते थे, बंदिश तो दे देते थे, ये ऐसा बंदिश है, 2-3 बार रिपीट करते थे, और एक बार गाना गा के पूरा
और वो भी कहते थे सामने मत बैठो, अलग कमरे में बैठो, सुनो, ताकि मेरे एक्शंस आप में ना आ जाए। हाँ हाँ जी हाँ, you should not copy my actions at all. You have to walk on your own legs. So listen, and then you start singing, and wherever you go wrong, and there only I'll come and correct you. That's it. I'm not going to make you hold my finger and walk. No, you have क्या to बात walk on your own legs. Yes. So वाह starting days were very horrible for me. I used to cry every day because nothing I knew how to develop. क्या करना है, ख्याल में क्या करना है, नयापन कैसे लाना है, हर बार नया कैसे हो जाता है ये राग इनका। अरे हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, और ये लोग बताते भी नहीं है, अरे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अभी वो जमाना चला गया है, जी वो जी जमाना चला गया है। आप अभी आपको बताना है कि ये करने से ये होगा। देयर मस्ट वाह बी एन ऑथेंटिसिटी इन आवर म्यूजिक नाउ। करेक्ट वो दिन चले गए, करते जाओ, 12 साल लगे, 25 साल लगे, अभी किसी के पास पेशेंस नहीं है। जी जी Life span is also very short, isn't it? शॉर्ट यस And the ट्रू time has changed completely, करेक्ट and we have to change. Our चेंज music has to change. जी Approach of music has to be changed. यस वेरी ट्रू अभी 10 वेरी घंटा, अभी मेरे शागिर्द को बोल दूंगा कि आप 10 घंटा रियाज करो, हाईली इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं, नहीं होगा ही 100% होगा ही नहीं। जी Whosoever is interested in music, but जी he is not be able to learn, and he will not be able जी to practice. So what जी to do? Then we have to, whether we have to stop music. यस ट्रू So that is a big question for us. यस तो सवाल तो यस यही है ना, अभी अगर 10 घंटे हम रियाज नहीं कर सकते तो फिर गायक बनेगा कैसे? तो इसके लिए आपको आसान तरीके से स्टूडेंट्स को बताना है कि जी क्लासिकल कैसे गाया जाता है, वाह आवाज को कैसे ट्रेन किया जाता है। जी व्हाट इज ख्याल? आप क्या बताएंगे अभी? व्हाट इज ख्याल? जी सिर्फ सोच से कुछ इमेजिनेशन नहीं होगा। हाँ, अभी उससे इमेजिनेशन वर्ड का आंसर हो गया ना। हाँ अभी परफेक्ट डिस्क्रिप्शन इसका आज तक कोई दिया ही नहीं। जी अरे सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ। अरे आप पंडित हो, आप उस्ताद हो, इसलिए आप सोच सकते हैं, मैं क्या सोच सकता हूँ? मेरा सोच ही नहीं है ना, मेरे पास जी सोच है ही नहीं है। फिर भी मुझे क्लासिकल सीखना है, तो फिर मैं क्या करूं? वाह So I have derived and I have came to a conclusion. What is khyal? What is the meaning of khyal? Khyal is nothing but you have to ask a question to a raga. Okay, you have to ask a question to a raga. Questions can be asked on any notes. Answer is always sa and po. वाह क्या बात This is the definition of khyal. तो सवाल कैसे पूछना है ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार सवाल आपको करने आ गया तो जवाब तो मालूम ही है, जी तो सा या तो इस तरह से आप बढ़ते जाओगे। कितने सवाल कर सकते हैं आप? जैसे 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 आपका जैसे सोच बढ़ेगा वैसे आपका क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। जितना क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे उतना आपका गाना डेप्थ होता जाएगा। क्या बात है वी डोंट नो वाह हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एट ऑल। जी ट्रू यस, ट्रू how to ask a question to a raga. वाह Then the building stands because we are the architects, isn't it? करेक्ट 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 We are the architects. We also build the buildings. We build a building of a raga. Today we build and we only see it. अच्छा अच्छा ये ऐसा बनाया क्या आज? तो फिर दूसरे दिन उसको आज डिमोलिश कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई खर्चा थोड़ा थोड़ी होता है। तो जी डिमोलिश करो, दूसरे दिन अलग बंगला बनाओ, उसको देख लो। ऐसे बंगलोज बनाते जाओ, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, जी और राग कभी खत्म वाह नहीं होगा। जी जी हाँ, और कोई राग छोटा नहीं है। वाह वाह लोग पट झट से कहते हैं कि ये राग है, इतनी जी है, ये 2-3, ये 15 मिनट का राग है। अरे भाई 15 मिनट के बाद वो आपका सोच बंद हो जाता है, इसलिए आप छोटे बोल रहे हैं उसको। क्या बात है वाह 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 कोई वाह राग छोटा नहीं है, कलाकार वाह छोटा होता है, क्या क्योंकि आपका सोच ही उतना है। आप सोचने के जी लिए तैयार ही नहीं हो। जी सोचना शुरू करो,
राग विशाल लगेगा। क्या बात है, वाह हाँ वाह, क्या बात है, बहुत 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 सटीक बात आपने कही कि राग को छोटा मानते हैं। काफी बहुत ऐसी छोटा। चीजें, हाँ, और काफी अभी ऐसी देखिए चीजें। जी बहुत बहुत जगह मैंने सुना, ए भूप काफी, ये तो क्लास का राग है। अरे किसने दिया भाई, किसने बोला आपको ये क्लास के जी राग है? जी भूप, काफी, दुर्गा, ये क्या क्लास के राग हैं? अरे 1 घंटे जी हम गा के दिखाएंगे ना। जी एक जी एक घंटा विदाउट रिपीटेशन हम गा के दिखाएंगे। अभी तक हमको उसका ये एंड नहीं मिल रहा है। हर जी, रोज नया भूप आ रहा है, हर रोज नया दुर्गा आ रहा है। क्या बात है। जी अरे ऐसा सही। क्लास का राग कैसे हो सकता है? किसने ये छाप दे दिया भाई? जी जी गलत है, गलत है। जी जी जी, इसमें मैं मेरे एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा, अगर आपको जी सही लगा तो आप बोलिए, कि यहाँ हम लोग है ना शास्त्र से ज्यादा परंपरा को मानते हैं, क्योंकि सब बिल्कुल लोग पहले बिल्कुल। ऐसे किया है इसलिए हम भी ऐसे करेंगे, ये एक तो वही है। चलते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही तो बदलना है, अभी यही तो बदलना है। हाँ, क्योंकि हाँ अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे आपने अभी आपने खमाज का या काफी का राग राग का नाम बताया, कि सबके मन में ये एक भावना प्रकट हुआ मतलब सोच आ चुका है कि ये राग सब ठुमरी और दादरा गाने के लिए है। नहीं, ऐसा है, हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं हो ही नहीं सकता। सकता ना, वो एक हो राग ही है नहीं तो सकता। उसमें डेफिनेटली उसमें डेफिनेटली क्लासिकल कुछ तो काफी बंदिश है, उसमें विलंबित हाँ बंदिश है, द्रुत है। बंदिश है। हाँ है। लेकिन एक परंपरा बन चुका है कि ये ठुमरी के लिए या लाइट म्यूजिक के लिए हाँ, ऐसे। ये मैं जरूर कहूंगा कि दीज रागास आर मोर सुटेबल फॉर ठुमरीज रादर देन यस, क्लासिकल। मोर करेक्ट सुटेबल, करेक्ट, मोर बट सुटेबल। करेक्ट हाँ, करेक्ट, सही, वाह। इसकी इसलिए वो वही अच्छा लगता है। और ये रस के बारे में वो एक जी बहुत जरूरी बात मैं अभी बात बताना चाहता हूँ कि अभी ये जी करुण रस है, हम्म, हम उस रस को बदल सकते हैं भाई। जिन्होंने बनाया वो सही बनाया है, उसमें हम जी कोई ये नहीं है, उसमें संशय का कोई दौरा नहीं है। लेकिन जी अभी मालकम सीरियस है, उसको हम चंचल कर सकते हैं। जी, क्योंकि हमारा सोच अगर बदल गया, उसको भी चंचल कर सकते हैं, दरबारी को भी चंचल कर सकते हैं। वाह, हाँ, इसलिए वो ये कहना उचित नहीं है कि नहीं नहीं ये यही ठीक है। वो रस उस समय अच्छा लगता है, उसी समय गाया अच्छा लगता है, कि इसमें कोई ये बात नहीं, गलत बात नहीं है। लेकिन उसको बदला भी जा सकता है, रस को बदला भी जा सकता है। करुण वाह रस को वीर रस भी बना सकते हैं, चंचल भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। वाह, और जिस दिन एटमॉस्फेयर जैसा है उसी दिन वैसा ही गाना है, क्या बात ये मेरा मानना है। ऐसे नहीं है कि घर में आज क्या गाना है सब बाहर करके निकलो। मैं जिंदगी में ऐसा कभी किया ही नहीं। है। जी समझो आज हम यहाँ घर पे बागेश्वरी प्रैक्टिस करके निकले और वहां जी जाके देखें तो बागेश्वरी का कोई वातावरण ही नहीं है, तो क्या करें? जी, तो फिर ये होना चाहिए कि an artist should be so much free when he goes and tunes the tanpura in the green room, and something will come in his mind, and that is the best choice. वाह Whenever he is tuning the tanpuras and whatever comes in his mind, that is the best raga you have to decide. वाह, क्या हाँ, बात है। और जी पॉजिटिव एनर्जी के लिए थोड़ा तो ध्यान करना बहुत जरूरी जी है, मंत्र जी पाठ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बहुत होते हैं, ग्रीन रूम में भी होते हैं, स्टेज पर भी होते हैं। जी उसके लिए कई मंत्र हैं, वो जी, मंत्र जाप करके ही उधर बैठना है, ताकि वाह उस जगह को हम ग्राउंडिंग कर सके। वाह, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या कितने बात लोग आके बैठ के चले जाते है। हैं, वो जी जी गपशप करते हैं। जी, दे हैव लेफ्ट सो मेनी नेगेटिव एनर्जीज आल्सो एंड पॉजिटिव एनर्जी आल्सो। यस, सो वी ट्रू, हैव टू क्लीन इट अप। जी, तो इसके लिए थोड़ा तो जाप योग प्राणायाम तो करना ही है। उसके लिए वाह, इससे कोई छुटकारा नहीं है, जी, इसलिए इससे म्यूजिक और आसान हो जाता है। वाह, वाह। इसी के संबंध में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी कि जी। संगीत और आध्यात्म, हम्म, आप कैसे इसको एक ही नाण्य का मतलब एक ही कॉइन का दो पहलू मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल एक ही है। क्योंकि
अभी आप देखिए, जाप करने बैठेंगे तो सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, isn't it? When you are meditating, you can control your mind just for a minute or two, maximum. जी Then again, your mind will start fluctuating. जी So music is the only one way. At once you enter the music, no thoughts. यस For 2 hours, 3 hours, 4 hours, you are completely out of the world. You will be in your world. That is the reason why the saints, why all the philosophers are behind music. This is the reason, because they said that you are so lucky. Within a moment, your mind comes to a concentration. Mind is concentrated and finished. That is finished, and you are one with music. When you are one with music, yeah, then you are one with the God. वाह क्या बात है हर एक राग का एक दैवत होता है, उस दैवत को प्रसन्न करना ही है और शरण में जाना है. यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू योर म्यूजिक, देन ओनली म्यूजिक स्टार्ट्स. वाह Otherwise, X वाह man will be singing, Kaival Kumar will be singing, somebody else will be singing. If you surrender yourself completely, then God will sing. वाह 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 You don't have to worry. You don't have to worry about आज प्रोग्राम कैसे होगा, आज गला खराब है, आज ऐसा जी कौन आए हैं. इसकी कोई जरूरत नहीं है. कौन आए कौन सुने, क्या करना है. सुनने वाला भी वही है और गाने वाला जी भी वही है. क्या हम तो बात सिर्फ है नाटक करने आए हैं बस. हाँ हाँ वाह वाह इसलिए टेंशन दूर है ना. जी 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 कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम जिक्र करना चाहता हूँ जो आज हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं. जी. नील जैन जी जो स्पीक में के इंदौर के इंचार्ज है, वो ओके भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. ओके मेरे ओके पिताजी आपको प्रणाम बोल रहे हैं. ओके. नमस्कार नमस्कार उनको भी. जी जी. और विवेक सिन्हा जी जो पटना हाँ, के, जी आप पटना जानते के होंगे. बहुत करीबी जी करीब से जानता हूँ. जी 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 वो भी हमारे साथ जुड़े हैं. उन्होंने लिखा है कि इस फेम्ड वॉइस कल्चर प्रैक्टिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी यंग क्लासिकल वोकलिस्ट टू होन देयर वोकल स्किल्स करके उन्होंने लिखा है. यस 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 यस. और इसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली. कल्पना जी. ताई भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कल्पना ताई जोकर. ओके ओके जी ओके. जी जी. और दीपा जोशी जो लंदन से जुड़ चुकी है हमारे साथ. ओके ओके ओके. जी. सो काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं. रविंद्र परचुरे जो सिंगापुर में रहते हैं, वो जी भी हमारे साथ, वो भी कलाकार का. जी. तो काफी लोग हमसे जुड़े हैं. मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो गाना है उसके जी. बारे में यू हैव अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ सिंगिंग, यस यस यस. जो नॉर्मली इट इज नॉट, नॉर्मली हम लोगों ने गुरु से हम लोग सुनने को नहीं मिलता है हम लोगों को. Which बिल्कुल because बिल्कुल. I have seen you even when you sing also, as you said earlier कि गाने के वक्त एक प्रसन्नता होना चाहिए. प्रसन्नता तो होना. आपके हंस गाने, के अगर हंस के नहीं गाएंगे तो क्या फायदा. तो वो हंसते आपका हंसते हुए गाने, गाना है. जी आपके गाने में मैंने उसको बहुत ऑब्जर्व किया, क्योंकि काफी लोगों को हम जी. लोग देखते हैं तो बहुत तकलीफ लेके चेहरे का जो हाँ. ये है वो सब. तो यू हैव अ साइंटिफिक वे ऑफ सिंगिंग. ये जो साइंटिफिक वे है, ये आपने इसके बारे में कैसे आपको सोचा आपने, हाउ डिड दिस Just थॉट केम टू योर माइंड? when I got initiated with my Guruji Chaitanya Anand Tirth, ओ so he taught me about the Omkara. ओके. हाँ, उसके बाद उन्होंने बताया कि 3 अलग अलग साउंड हर एक इंसान में होता है. अभी आप ढूंढ लो अभी वो कैसे है, मैं हेल्प करता हूँ आपको. और उसके लिए क्या जाप करना है और ओमकार कैसे करना है, ओमकार मेडिटेशन कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा. तो आगे की जो जर्नी है वो आपको तय करना है. वाह. So then my journey started. Then I came to know that the bass voice, the chest voice, and the head voice. वाह. And when it should be used in music, everybody has this. जी Each and every artist has it, but he is not known to these voices because he has not studied, and Guru has also not taught about this. हाँ, अभी
नेजल कितना यूज करना है गाने में? जब आपको तकलीफ होता है तभी आपको नेजल यूज करना है, नहीं तो करना ही नहीं है, जी, है नहीं? जब भगवान ने आपको इतना बढ़िया आवाज दिया है तो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करो ना। करेक्ट। गाने का आवाज और बात करने का आवाज अलग नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक ही है। वाह। हाँ, ये दोनों एक ही है। ऐसे जोर से शर्ज लगाओगे कहते वो गाना क्लासिकल हो जाएगा, गलत बात है। जी, तो कितने साल गाओगे? जोर लगाओगे तो 10-20 साल गाओगे, 40 साल तक गाओगे, उसके बाद क्या? 40 साल के बाद क्या करोगे? तो यही बोलोगे ना, नहीं 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 अभी हम उम्र हो गई है, थक गए हम। अरे ये गलत बात है, ये कहने की बात है। अरे आपने सोचा ही नहीं कि गाना अंत तक होता है। टिल योर लास्ट ब्रेथ यू कैन वाह, सिंग, इट इज माई चैलेंज। वाह, यस, if you know the techniques, पूरा गाना टेक्निक पर चलता है, जी, सांस के ऊपर, पूरा जी, सांस के ऊपर है। हाँ, और आपको क्या करना है, नाभि से लेके बराबर कंट्रोल करके यहां कुछ प्रेशर देना ही नहीं। When the sound comes from the abdomen, it should get circle on the lips, both the lips. Then you are वाह, never strained. Then you are never strained at all. जितना भी ऊपर जाओ, ती तार सप्तक पे जाओ, पूरा तार सप्तक का सा लगा के आ सकते हैं। क्या इस बात तरह से आवाज आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता है हमें शर्ज नहीं लग रहा है, ऋषभ नहीं लग रहा है, गांधार, ये तो बाएं हाथ का खेल है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो कुछ प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। You have to keep yourself fit. If you want to be a singer, then you have to keep yourself very fit. है। वाह, आपका एसिडिटी लेवल कितना है, वात पित्त कितना है, ये सब कंट्रोल में रखना है आपको। ये सब गाने के ऊपर इफेक्ट होता है। हम कहते हैं कि नहीं 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 आज हमारा रियाज कम हुआ इसलिए हम आवाज ऐसा हो रहा है, गलत बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आपका उस समय एसिडिटी लेवल क्या है, वात क्या है, ये देखना है। इस एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और खाना बहुत कम खाना चाहिए, सब खाओ लेकिन बहुत कम खाना चाहिए। इफ यू वांट टू बी एन एक्टिव सिंगर यू हैव टू ईट वेरी लेस। ऐसा कुछ नहीं है, पहले लोग दबा के खाते थे, उस जमाने का जमाना अलग ही था, उसके बारे में सोचना ही नहीं है हमको। मैं यही तो बार बार दोहरा रहा हूं कि पुरानी बातें भूल जाओ, अभी आपको क्या करना है आगे, और व्हाट यू आर गोइंग टू गिव टू दिस म्यूजिक वर्क, यू हैव टू थिंक दैट। सॉरी, मेरे ख्याल से वापस कुछ प्रॉब्लम हुआ। ओके ठीक है, चलो। जी, 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 सॉरी। जी, जी, आप बोल रहे थे कि चेस्ट वॉइस और इसके बारे में। हाँ, कैसे कब इस्तेमाल करना है, तब आप जब आप पंचम के ऊपर जा रहे हो, मध्य सप्तक के पंचम के ऊपर जा रहे हो, तब आपको जी, लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रहा है, उस समय जी, थोड़ा सा टच देना है, टच देना है, यूज जी, नहीं करना है। यूजिंग एंड टचिंग इज बोथ आर डिफरेंट, यू नो। यस, So यस, you have to just give a touch of your nose, that's it. And don't turn it to completely nasal. ओहो, Yes, this thing you have to take care very much. Utmost care has to be taken in this, because a lot of people, what happens when they introduce the nose in the middle, the music was very easy again. तो उधर फंस जाते हैं कि चलो यार ये अच्छा है, लेकिन ये इजी बेसलेस है है। ना। हाँ, इजी है लेकिन ये बेसलेस है, फाउंडेशन नहीं है इसका, कभी भी बंगलो गिर सकता है। क्या बात है, वाह, हाँ, अगर आपको बुखार है, आपको सर्दी है, जुकाम है, फिर भी आप गा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बेस से गा रहे हो।
इससे कोई संबंध ही नहीं है, और गले से भी कोई संबंध नहीं है। जी गला खराब होगा जब आप यूज करते हो, इसलिए खराब हो रहा है। मैं यूज ही नहीं करता तो मेरा गला खराब क्यों होगा? मैं आइसक्रीम खा के गा सकता हूँ, पकौड़े खा के गा सकता हूँ। हाँ हाँ बस खाने के बाद 1 2 3 एक्सरसाइज करो, वॉइस एक्सरसाइज करो, सीधा निकल चलो। मैं आज तक हॉट वाटर या हॉट कॉफी या पानी स्टेज पे रखता ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये सब होमवर्क मैंने घर पे किया है। ये होमवर्क स्टेज पे करना नहीं है, ये शो ऑफ स्टेज पे करना नहीं है। जी तो इंप्रेशन जमाने के लिए गर्म पानी डालो, ये करो, खराब हो गया। अरे ये क्यों भाई, ये सब घर में करो ना। क्या बात तो है। गाना हो तो बिंदास, एक बार शुरू हो गया तो हो गया, मैं वाह रुकावट किस बात की है? जी बस। तो वेरी ट्रू। ठीक है, गाना हाई लेवल का नहीं हो उस दिन, लेकिन एक स्टैंडर्ड के नीचे तो आना ही नहीं है, आना ही नहीं। क्योंकि वाह एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होता है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड होता है, ऑडियंस के मूड, क्योंकि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, मूड खराब हो जाता है। इसलिए जी गाने पे असर कितना होना चाहिए, नॉट बियॉन्ड, बिलो द लेवल। इट शुड नॉट बी वाह बिलो द लेवल, इट शुड बी एट वन लेवल। आपको तय करना है, इससे नीचे गाना आ रहा है तो यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, यू हैव टू से समवेयर। दैट इज जी 100% sure. So always it should be above the level. The sky is our limit. यस तो उसके वहां जाना है ना, तो नीचे क्यों आना है? वाह वेरी ट्रू। ठीक है, आज नहीं जमा, ठीक है ना, उसकी मर्जी है। तो उसको आज अच्छा नहीं लगा है, उसकी मर्जी है, चलो ठीक है। ये ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर हर बार क्या सेंचुरी लगाते हैं क्या? जीरो पे वाह कितने बार आउट हो गया, जी फिर भी वो सचिन तेंदुलकर है ना। जी 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 दैट थिंग शुड बी हियर। यस एक बार आप फेल हो गए, एक बार कुछ गलत हो गया प्रोग्राम, हमारे लोग तो बिल्कुल कहने के लिए रेडी हो जाते हैं, अरे उसका खत्म हो गया आजकल, बहुत बुरा गा रहा है। अरे जी इसके पीछे हम क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, जी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जी कोई सोचते? एक बात करके खत्म कर दिया उस जी कलाकार जी को। जी ऐसा थोड़ी होता है, एक दिन का प्रोग्राम से आप तय करेंगे किसी का? जी और जी फिर हम भी सही। आपको तय करते हैं, एक दिन में आप क्या समझने वाले हैं क्या म्यूजिक? क्या जो बात है। वाह वाह आप इतने बात कर रहे हैं, एक दिन में आपको क्या गाना समझ में 60 साल हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन का गाना आपको क्या समझ में? क्या बात है। वाह 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 तो वाह फिर, वेरी ट्रू वेरी वेरी ट्रू। या फिर कहना नहीं चाहिए। अरे जी हक किसको है? सिर्फ गुरु को है। अरे उसको जी क्या नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये गलत कर रहा है। एक आदमी मुझे आके मिल गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको, तो बोला, अरे यार वो बहुत बुरा गा रहा है आजकल। मैंने कहा आपने सिखाया उनको? नहीं, मैंने नहीं सिखाया, वो उनका। तो फिर आप कौन होते हैं उनको बोलने वाले? जी हक किसको दिया आपने? किसने दिया आपको ये सब बात करने का? हक ही नहीं है आपको, सिर्फ गुरु को है कि शिष्य क्या गलत कर रहा है, वो क्या करे, उसको हक है। हाँ 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 हाँ। आपको क्या अच्छा बात है। लगे सुनो, नहीं अच्छा लगे छोड़ के चले जाओ ना। क्यों बात कर वाह रहे हो भाई? एंड क्या व्हाई बात व्हाई है। आर यू स्प्रेडिंग नेगेटिव एनर्जी देयर? यस Isn't it? वाह वाह See, always think positive, always be करेक्ट positive, करेक्ट be positive. करेक्ट। Thinking should be changed, and you will change your life. वाह See, you are the architect of your own life. God has करेक्ट nothing to do with it. वाह वाह वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। Yes. हमारे साथ रविंद्र काटुटी जी भी जुड़ चुके हैं, आपको नमस्ते Oh, बोल रहे हैं वो। oh, क्या बात है। हेलो हेलो हमारे हेलो रविंद्र जी। जी जी हमारे साथ अशोक कपूर जी बनारस से। अच्छा अ, अच्छा अच्छा, क्या बात है। जी जी वो भी हमसे जुड़ चुके हैं आज। और अच्छा, ये एक यंग कलाकार है आदित्य खांडवे, वो भी हमारे साथ ओके। आज जुड़े हैं। तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज आपको सुनने के लिए। एंड यू स्पोक सो वेल अबाउट listeners, just see listening one day to the concert and telling that अरे एक दिन अच्छा नहीं, एक अरे वो तो अच्छा नहीं गाता है, this kind of आज negativity। तक मैंने सुना ही नहीं, आज तक मैंने सुना ही नहीं है। अरे किसी का मूड नहीं लगा, कोई कलाकार अच्छा नहीं बजाया, अरे यार उसका तो बहुत प्रैक्टिस कम हो गया। अरे आप कौन होते होते हो भाई बोलने वाले? क्या बात है।
अरे उसके उसके ऊपर क्या बीत रही है, गो बिहाइंड द स्क्रीन एंड देन Yes. सी व्हाट इज वाह, हैपनिंग इन हिज लाइफ। एक दिन से क्या होने वाला है भाई। क्या और बात है, हमारे वाह, ना, और हम पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि हमारे लिए पब्लिसिटी बहुत कम है। वी डोंट हैव लॉट ऑफ मीडिया कवरेज। कि जितना भी बढ़िया गाओ, कहीं किसी एक कॉर्नर पे आ जाएगा बढ़िया गाया, क्या फायदा। और जो ये हॉलीवुड पे गाएगा वो एंट्रेंस पेज पे इतना बड़ा करके फोटो दे देंगे। वाह, जी, हमारे ऊपर खड़े हैं वो लोग। ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मत करो, हाँ, उनको और डबल करो, लेकिन हमको भी थोड़ा उधर तक पहुंचाओ यार। वाह, कष्ट तो हम भी उठा रहे हैं, जी, बल्कि उनसे भी ज्यादा हम कष्ट उठा रहे हैं। जी, थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान दो भाई। सही मीडिया है, वालों से मुझे यही कहना है कि थोड़ा हमको भी इंकरेजमेंट करो यार। ऐसे जी, नहीं है कि सिर्फ फिल्म म्यूजिक ही अच्छा है। अरे जी, फिल्म म्यूजिक हमारे ऊपर खड़ा है, हम भी फिल्म म्यूजिक गा सकते हैं भाई, उनसे भी जी, अच्छा गा सकते हैं, ऐसा नहीं है जी, कि। लेकिन जी, जब उनको मिल रहा है तो हमको भी थोड़ा मीडिया कवरेज दे दो भाई। ये बहुत जरूरी हो जाना चाहिए। जी, जी, सब मिलके मीडिया को ये बताना चाहिए कि यू हैव टू लिफ्ट द हिंदू क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यू हैव टू मेक द कवरेज ऑफ दैट जी, स्ट्रांगली। थोड़ा चढ़ा के बात करो ना। जो जो नहीं रहता उस भी चढ़ा के आप एक एक्टर के बारे में बोलते हैं ना, जो उनके गुण ही नहीं होते उनके पास। जी, He जी, doesn't have the talent, but you still boost him like anything in the करेक्ट, advertisement world. Why? We say that I don't want any boosting. Write as exactly what it is. जो अच्छा है वाह, अच्छा लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो ना, करेक्ट। उसमें क्या है। हाँ लेकिन आजकल ये भी मीडिया में आपने भी इसके बारे में पहले मैंने सुना है कि आपने भी जिक्र किया है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मुझे भी एक्सपीरियंस ये इसका हुआ है कि आजकल मीडिया वाले जो रहते हैं वो पहले आके पूछ लेते हैं आप क्या क्या गा रहे हो, हाँ, तो वो लिख के जाके यही उसको है। जाके ये छापने बहुत, वाला है। क्योंकि वो क्लासिकल का बारे में जानते ही नहीं है, और वो हमसे पूछ के लिखने वाले हैं। तो तानसेन समारोह में यही हुआ, तो मैंने कहा जी, कि मैं कुछ नहीं गाऊंगा, आप कुछ मत लिखो। वाह, हाँ, एक अभी आधा एक घंटा पहला एक कलाकार गा रहा है, उसके बाद वो कहेंगे आप क्या क्या गा रहे हैं, उसके बाद भजन गाने वाले, उसके बाद ठुमरी गाने वाले, तो हम अभी अभी बोल बता दीजिए। मैंने कहा मैं कुछ गाने वाला ही नहीं, एक कलाकार आए थे, ऐसे गा के चलेगा, ऐसे लिख लो बस। ऐसा सही, फालतू लेके क्या करना है। नहीं सही है, सही है। नहीं इसका हाँ, इसका मैं एक एक क्योंकि जिक्र करना चाहूंगा, सॉरी, जी मेरा एक एक्सपीरियंस मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक बार ऐसे हुआ प्रोग्राम में कि वो मुझे आके पूछे कि आप क्या गाने वाले हो, तो अभी हम तो यंगस्टर से हम तो कुछ आपके जैसा तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो मैंने बोला मैं यमन गाता हूँ। तो उन्होंने दूसरा एक, टोटल 3 आर्टिस्ट थे उस दिन, तो यमन गाता हूँ। तो फिर वो क्या हुआ, मेरे जो पहले आर्टिस्ट थे, मेरे मुझसे पूछने के बाद उनके पास गए थे, वो बोले कि यमन गाने वाले, वो यमन बजाने वाले वो। तो ठीक मैंने है, यमन, देख लो फिर। मुझे क्या हुआ, तो मुझे मुझे जैसे उन्होंने बोला कि यमन गाने बजाने वाले, तो मैंने राग बदल दिया, लेकिन नेक्स्ट डे पेपर में मैंने भी यमन गाया या करके ही आया उसमें। ऐसे ही होता है, इसलिए उनको बोलना है बस ऐसे ही गा के चले गए, कुछ तो गाए और चले गए, बस यही लिखो बस, और क्या। जी, 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 पहले बहुत जमाने बहुत, के लोग बैठते थे, पहले जी, जमाने के जी, वाले क्रिटिक्स बैठते थे और बिल्कुल सही सही लिखते थे। अभी जी, आजकल कहाँ है, जी, किसी के हाथ में किसी को एडवर्टाइजमेंट थमा दिया। जी, जी, और ऐसा वेरी ही वेरी होने ट्रू, वाला है। वेरी ट्रू। मैं आपसे एक सवाल ये और पूछना चाहता हूँ। जी, एक बात और भी है, एक बात जी, मैं और सब जगह कह चुका हूँ, ओपन जी, इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ। जी, हमारे फील्ड में ही क्यों देर से अवार्ड्स दिया जाता है। वाह, क्यों स्पोर्ट्समैन को 22 साल पे आप भारत रत्न देते हो, क्यों एक कलाकार को नहीं दे सकते। आप तय कर लो भाई, हम नहीं कह रहे कि 40-50 साल में दे दो, जी, कुछ तो ये हो जाना चाहिए। जी, अरे व्हील चेयर पे भारत रत्न लेके क्या करना है, बेड पे भारत रत्न लेके क्या करना है, जी, जब पता ही नहीं हमको क्या मिल रहा है, जी, तब आप भारत रत्न के दो या कुछ दो, क्या फायदा है भाई। जी, जी, जब तक कुछ है उस समय दो, उससे कुछ आनंद हो जाएगा, उससे उसका कंट्रीब्यूशन डबल हो सकता है।
जी अरे भाई इतना कुछ मुझे कुछ मिला है, मैं कुछ और करूं, मैं कुछ और दे दूं म्यूजिक के लिए। जी, वेरी ट्रू। जी 70 से 80 साल के बीच में कुछ तो करो, ऐसा फिक्स कर लो कि अब ये अवार्ड देना है, ये अवार्ड देना है। ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि 50 साल पे ही दो, 60 साल पे ही दो, नहीं है। उसको अगर योग्यता है तो जी, दे दो ना। करेक्ट। ये बंद हो जाना चाहिए। और मरणोत्तर के बाद क्या दोगे आप? उसको उसको लेके क्या करेंगे? हम क्या ऊपर से देखेंगे क्या उसको? अरे अरे अच्छा हुआ मुझे मिल गया। हाँ? क्या? वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। These नहीं, things बहुत। have to be changed. Have to be changed. यस, These things have to be changed. And somebody has to fight for this. यस, When everybody can get anytime, why only musicians can get at last? हर एक फील्ड में आपको मिल जाता है अवार्ड्स, जी, जी, सपोर्ट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हमको जी, क्यों नहीं भाई? नहीं, जी, उसका उम्र बहुत छोटा है, उम्र हो जाना चाहिए। जब हमको हमारे पास स्टिक आ जाएगा तब बोलेंगे बहुत एक जमाने में बहुत बढ़िया गाते थे इसलिए हमको इनको अवार्ड दे दिया। क्या बात ऐसे मेहरबानी कर रहे हैं, है। जी, ऐसे जी, मेहरबानी कर रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ? बहुत 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 सही कहा आपने। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपने एक ऐसा आपका करियर आपने बनाया है। आप मतलब इतना क्लासिकल तो कमाल का गाते हैं, नाट्य गीत आपका एक्चुअली पहला जो संगीत में एंट्री हुआ वो नाट्य गीत से नाटक नहीं थे। आपका शुरू हुआ, और नाट्य संगीत आप काफी गाते हैं। अ, एक ठुमरी, ठुमरी, कंजरी, जी, होरी, जी, टप्पा, सभी वाह, गाता हूँ, जी, सभी सभी गाते गाता हैं हूँ। आप। हाँ। जी, मैं और ये मैंने पूछना चाहता। खुद खुद किसी से सीखा नहीं है। ओ, टप्पा, होरी, कचरी मैं खुद डेवलप किया है, सुन के डेवलप किया। क्योंकि यहाँ कर्नाटक में कौन सिखाने वाले? हम थोड़ी यूपी हाँ, के और बिहार के या दिल्ली के हैं जी, जी, जो आसानी से जी, मिले। हम थोड़ी बनारस के हैं, जी, हम तो यहाँ बैठे हैं भाई। जी, बस सुन के मेरे फ्रेमवर्क में उसको उतारा है, क्या एज इट बात इज नहीं। कि है। जी, सोच के कि इन्होंने इनका क्या अप्रोच है, कि बनारस अंग का क्या अप्रोच है, पटियाला अंग का क्या अप्रोच है। सिर्फ अप्रोच लिया है मैंने, बस, जी, बाकी कुछ नहीं लिया। और वो जी, अप्रोच अगर मेरे फ्रेमवर्क में बैठ सकते हैं तो मैंने लिया, अगर नहीं बैठते तो छोड़ जी, दिया। इस तरह से वाह। मैंने ठुमरी, टप्पा, कजरी, होरी सब रेडी कर दिया। मैं इसी के ऊपर पूछना चाहता हूँ कि ये सब एक गायक के लिए गाना जरूरी है क्या? सब कुछ गाना बहुत जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि यू विल बी अ परफेक्ट मैन। क्योंकि जी, ठुमरी के लिए स्वर लगाव अलग है, क्लासिकल के लिए स्वर लगाव अलग है, भजन के लिए अलग अप्रोच है, भावगीत के लिए अप्रोच अलग है। वाह, तो ये अप्रोच के बारे में आपको समझ में आना चाहिए ना। अभी भजन कैसे गाए भाई? अभी वही भजन मराठी में कैसे गाया जाता है, और कन्नड़ दासवाणी में कैसे गाया जाता है, और हिंदी भजन में कैसे गाया जाता है। इसका वाह, डिफरेंस तो होना ही चाहिए। जी, ऐसे नहीं है कि जैसे मराठी गाओ वैसे ही हिंदी गाओ, जैसे हिंदी गाए वैसे कन्नड़ में गाओ, नहीं, ऐसा हो ही जी, नहीं सकता। इसका स्टाइल ही अलग है, मराठी का स्टाइल अलग है, हिंदी का जी, स्टाइल ही अलग है। क्योंकि कबीर का सोच अलग है, पुरंदरदास का सोच अलग है, जी, और ज्ञानेश्वरी तुकाराम का अलग है। यार उनके जी, जैसा सोच है वैसे गाओ ना, करेक्ट, उनके जैसे विचार है वैसे गाओ। जी, बी लॉयल टू देम। अरे खुद का विचार नहीं आया, यहाँ खुद का विचार नहीं चलेगा। जी, तुकाराम ने क्या कहा है, पुरंदरदास ने क्या कहा है, और कहते समय उनको क्या लगा होगा मन में, जी, क्यों लिखा उन्होंने ये भजन, ये वाह, सोचना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे क्या करना है, कितना मैं इसको ये कर सकता हूँ, 100% मैं दे सकता हूँ इसको। वाह, एक भजन को मैं ट्यूनिंग कर रहा हूं तो इसको बराबर वो जो भाव उन्होंने थिंक किया है वो यहाँ आना बहुत जरूरी है। भले वो सही हो या गलत हो, लेकिन क्लोजली तो जा सकते हो आप, जी, उसके नजदीक तो जा सकते हो। जी, तो उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है ना। हम सोचते जी, ही नहीं है, हाँ, बिना सोचे गा लेते हैं ना, इसीलिए जी, 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 बहुत तो हर बहुत। बार ये सोचना बहुत जरूरी बहुत सटीक बात है ये स्टूडेंट्स, स्पेशली मेरे है। लिए भी, मैं भी एक स्टूडेंट। जिंदगी में भी ऐसा ही है कि हर बार जी, सोचो पहले, फिर जी, बाद में काम बात करो। करो। 10 बार सोचो जी, फिर जी, बात जी, करो, क्यों जी, करते हो? जी, जी, सोचना खुद, पहले है।
जी जी, है नहीं? खुद का एक थिंकिंग आपने जो बताया ये बहुत ही सही है, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है हम सुनते हैं और इसी को गाने का प्रयत्न करते हैं, हमारा खुद का उसमें कुछ डालने को कोशिश भी नहीं करते हम लोग। कोशिश ही नहीं करते हैं, बिल्कुल। जी जी। इसीलिए ये ऐसा गाने से क्या होता है, 40-50 साल के बाद फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। जी। एग्जैक्टली फॉलो किया, गुरु ने क्या किया उसको फॉलो किया, गा लिए, अच्छा गा लिए, जवानी थी, जवानी थी, जोर डाल दिया, गा लिया 30-40 साल तक। उसके बाद उनको जब सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट टेलिंग यू व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग इन योर लाइफ, सो यू शुड हैव नॉट डन दिस। सो बहुत देर हो चुकी होती है, यस। इसलिए देन द आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है आर्टिस्ट के लिए। तो फ्रस्ट्रेशन के बाद यही एक बचता है, पीना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जी बोलते हैं अभी हमारा गाना अगले अगले जन्म में गाएंगे, बस हो गया। जी ऐसे नहीं जी है, ऐसे नहीं। जी जी। मैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग भी आज देख रहे हैं, आगे भी क्योंकि इसका मैंने क्योंकि क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं जी सो के भी गा सकता हूं, जी। ओ। उसका भी प्रैक्टिस किया मैंने, कि समझो आज कुछ हो गया मुझे, हाँ। सो के भी मैं स्टूडेंट को सिखाना चाहता हूं। वही जो हरकतें बैठ के या खड़े होकर भी क्लासिकल गाना चाहिए, क्यों नहीं गाएंगे आप? जी देखो कि एनर्जी लेवल क्या डिफरेंस आता है उसमें, बैठ के गाओ, खड़े होके गाओ, और सो के गाओ, तीनों इसमें आप क्या ये कर सकते हैं। अरे उसके बारे में सोचो ना, जी ऐसे नहीं है कि बस अभी है इसलिए गाओ, उस बाद में नहीं देखेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अभी 40 साल आगे जाके सोच के गाना करना है जी जी कि मेरे 40 साल के बाद मैं कैसे गा सकता हूँ। जी अभी 80 साल का मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मुझे गाना है, तो फिर मैं कैसे गाऊं? जी। ये क्योंकि मुझे एनर्जी लगाना ही नहीं ना, क्योंकि अभी मैं एनर्जी लगाता नहीं हूँ, जी बिकॉज आई स्टोर ऑल माई एनर्जी एंड आई सिंग विद टेक्निक्स, एंड द सेम टेक्निक विल बी फॉलोड आफ्टर 40 years। भले थोड़ा कम हो जाए, जी लेकिन गाऊंगा जरूर, जी दिखाऊंगा जरूर, जी क्योंकि मेरे पास टेक्निक्स है, जी जी। तान बहुत के बहुत सही। टेक्निक्स है, हाँ, जी स्वर लगाव के टेक्निक्स है, जी शब्दोपचार कैसे करना है, शब्दोपचार कैसे करना है, उसका भी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको बंदिश ठीक तरह से गाना नहीं आता है, हम ठीक तरह से बंदिश गाते नहीं है। बंदिश को कैसे गाना है, अलग अलग तरीके से उसको सवाल करके बंदिश गाना है, जी जी तब जाके वो बंदिश निखर के आ जाता है। जी हाँ, ये सब सोचने के बाद ही पता चलता है, जी। बिना सोचे कुछ नहीं होगा। ये बहुत आपने बहुत सही सही बात कही कि बंदिश को शब्दोच्चार और बंदिश को क्या गाना है और शब्द का उच्चार कैसा होना है, क्योंकि मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस में जब भी छोटा था तो जब भी मियाँ मल्हार सुनता था, पहले तो हम तो कर्नाटक से, तो हिंदी उतना अच्छा नहीं था हमारा, जब हम छोटे थे तो स्कूल में भी हिंदी नहीं था, तो हम लोग मियाँ मल्हार जब भी सुनता था, मैं सुनता था ये करीमना मतेरो, मतेरो मतलब क्या है, करीमना मतलब क्या है, ऐसा हम लोग को बिल्कुल करी बिल्कुल। मतलब कन्नड़ में तो करी मीन्स ब्लैक, तो करी मना हाँ, मतेरो मतलब इतना हम लोग को वो जस्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है सुन ना। सुन के ऐसा गलती उसका सोच ही नहीं था, क्योंकि बाद में हम लोग को जब भी हम लोग हिंदी समझ में आने लगे, थोड़ा इसके बारे में ध्यान देने लगे, तभी हम अभी ये लोग को पता देखिए, चला। अभी मजा देखिए, अभी अभोगी में चरणधर आयो है, जी फेमस बंदिश है, जी लेकिन पहले जमाने के लोग कैसे गाते थे, ए रे चरण, एक बार चरण बोल दिया, उसके बाद पूरे 45-40 मिनट जितने बार गो ए री च, ए री च, ए री च, रण नहीं है, ये क्या जी गाना हो गया भाई? जी जी। बंदिश बराबर है, लेकिन आपका सोच थोड़ा बदलना चाहिए ना, क्या बात है। क्योंकि उस जमाने में एजुकेशन नहीं था, अब तो एजुकेशन आपके पास है ना, तो फिर जी सोचो जी। ना, थोड़ा थोड़ा थेरोटिकल भी सोचो भाई। वेरी ट्रू। चरण धर आ, आप पे सम रखो ना, जी चरण धर रे चरण धर, हाँ, यहाँ हाँ। समा सकता है ना, तो ऐसे बदल करना चाहिए भाई। जी ऐसे जी नहीं है कि वही गाते आओ, वही करो, ये करो, वो गलत है ना।
इसलिए थोड़ा जी तो सुधारा जा सकता है। जी जी जी। पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफी हम्म, स्टूडेंट्स लोग इसको देख रहे हैं, और आपको एक संगीत का स्टूडेंट अगर आपके पास आता है बिल्कुल। सीखने के लिए, तो व्हाट इज द व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इफ ही वांट्स टू मेक अ करियर इन म्यूजिक, हम्म, तो आप उनको क्या बस क्या सलाह देंगे? दो ही चीज चाहिए मुझे। जो स्टूडेंट जी मेरे पास आएगा, एक गला और एक लय की समझ, वाह, बस ये अगर दो है तो मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ। जी लेकिन हाँ, और गला चाहिए। खराब गला है तो भी चलेगा, मैं जी उसको सुधार सकता हूँ, क्योंकि मेरे जी पास टेक्निक्स है, मेरे कुछ एक्सरसाइजेस है, योगिक एक्सरसाइज करके उसको मैं सुधार सकता हूँ। वाह, लेकिन लय क्या कर सकता हूँ मैं? लय कोई नहीं सिखा सकता। ताल जी सिखा सकते हैं आप, जी ताल सिखा सकते हैं, क्योंकि इतना 12 बीट्स है, 16 हम्म बीट्स है, 10 बीट्स है। हम्म लेकिन जी धा और दिन के बीच ब्रह्मांड छुपा हुआ है, वो उस जी, लय को कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? वाह, कौन समझाएगा? अरे उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, ये समझाने जी की चीज नहीं है। ऐसे हमारे फील्ड में बहुत से ऐसे चीजें हैं, बता नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते वाह वाह, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं एक लास्ट में एक आपसे लास्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हैं। जी। आप एक करियर आपने बनाया है, आपका एक आज एक खुद का एक मतलब नाम है, आपका गाने को इतने लोग पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, हर एक बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में आप गाते हैं, तो एक एक करियर बिल्ड करने में आपको, मेरे ख्याल से इट इज डेफिनेटली नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि काफी आपको डिफिकल्टीज आपको हाँ, फेस करना पड़ा होगा। बहुत बहुत बहुत। तो इसको, इतने क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो है सुनने वाले, क्योंकि इसमें वन ऑफ द मेन थिंग आई फील एज अ म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, की पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव। इसमें कोई भी ऐसे आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इंस्टेंट कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई, और हाउ डिड यू ओवरकम दीज चैलेंजेस, whatever you have faced जस्ट in? यस, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, ये ओवरकम करने के लिए एक ही सपोर्ट देगा, ध्यान और योग। क्या बात विल पावर बढ़ जाएगा आपका। मान लो इस जन्म में कुछ नहीं होगा आपको, अगले है? जी जन्म में तो होगा। जी, इतना विश्वास रखना चाहिए आपके म्यूजिक के ऊपर। आप इस जन्म में अगर नहीं मिला तो अगले जन्म में तो 100% मिलेगा ना। आहा, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो भाई? इस जन्म में ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, अगले जन्म में। इसीलिए आज आपको आप इसमें देख रहे हैं रियलिटी शोज में, इफ यू जस्ट सी द रियलिटी शोज, सी, कैन यू सी द टैलेंट्स? yes, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, हु हैज टॉट देम? हु हैज टॉट देम? they have all done in the past and they are carrying it now in at the present. So इसके ऊपर तो विश्वास रखो भाई। इस जन्म में अगर नहीं हुआ तो ठीक है ना, करते रहो, आनंद लेते रहो, ये क्या कम है? खुद जी आनंद लेते रहो, गाते रहो, आनंद लेते रहो, गाते रहो, यही तो जिंदगी है। और क्या चाहिए आपको? जी आनंद लेते रहो बस। ईश्वर की मर्जी है, हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो अगले जन्म में हो जाएगा। तो जी होना तो ही है। जी झगड़ा तो उससे करो ना, आपको करना ही है। अगर इस जन्म में नहीं करना है तो अगले जन्म में आपको करना है, तो झगड़ा उसके साथ करो यार। आदमी के साथ क्यों झगड़ा करते? क्या बात है, वाह आदमी वाह, से झगड़ा करके मिलने वाला क्या है? झगड़ा तो उससे होना चाहिए, परवरदिगार से झगड़ा होना चाहिए। जी यार मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम्म, वो देगा, वो देगा, 100% देगा। लेकिन आपका लेवल बढ़ना चाहिए। क्या बात है, मांगने से पहले आपका लेवल बढ़ना चाहिए। आपके वाह, पास लेवल ही है ना, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, वो फिर भगवान पूछता आपके पास वो ताकत है? मैं आज ही दे देता हूँ। ताकत है आपके पास? नहीं है, तो फिर मैं कैसे दे सकता हूँ? वाह, सो यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। इफ यू वांट टू यस, गेन समथिंग, यू रेज योर स्टैंडर्ड, यू विल गेट एवरीथिंग। चेंज क्या योर बात थॉट्स, यू विल गेट एवरीथिंग। है, चेंज यस, योर थॉट्स, यू विल गेट वाह, एवरीथिंग। यस, बहुत, प्राणायाम, रियाज के साथ योग, प्राणायाम और ध्यान अगर करोगे तो एनी स्टूडेंट हु कम्स टू मी, आई विल मेक हिम रेडी इन जस्ट 5 years. He will be on the वाह, stage in 5 years. क्या और हर बात है, रोज रियाज कितना होना चाहिए? 2.5 से 3 घंटा बस,
इतना ही समय दे दीजिए, मैं टेक्निक्स दे दूंगा, चलना है। किसी को कोई आवाज की खराबी हो, पूछिए, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। लेकिन क्या बात है सातत्य से करना चाहिए, हर रोज सुबह उठना चाहिए। जी। यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:35। यस हाँ, जल्दी उठना ही चाहिए, यही सबसे राजमार्ग है संगीत के लिए। जी डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, गेट अप जी इन द मॉर्निंग, जी complete all your work, practice yoga, meditation, everything. See the change what will happen, because the positive energy which is present in early morning, it is not there the whole day, क्या बात because all the sages and all the saints and all the sadhus and all the gods are waiting to bless you at that time, ब्रह्म between मुहूर्त 3:30 Brahma Muhurta. Because everybody is meditating, the sadhus are and the saints are meditating for you and not for them. They are meditating for ourselves, to grace, to help, and to bless. वाह So if we don't get up, we'll not get the blessings. That is there. यस We say Brahma Murta, and the science says positive energy. Everything is the same. सेम Yes, it is. वाह And music and science are one. क्या बात ये पहले समझ लो, साइंस से अलग नहीं है म्यूजिक, साइंस एंड म्यूजिक इज वन ओनली। सेम वाह वाह So I think I have my personal opinion that I have not come across there was again some issue with the network. I'm extremely sorry. या Today it's been quite a problem. Kaivalli ji, I have come across very few people like you know, who are so erudite. You are so knowledgeable, and you know how to put it across. That is very, very, you know, great quality that you possess. Because I have seen थैंक यू। many people have knowledge, but they don't have the capacity to put it across in a very simple manner. I think you are one of very blessed ones to have those. I mean, those qualities. We all, whoever is there today, who have attended and who are going to listen to this session in future on my Facebook, on the Musical Musics Facebook page, they'll be really, really, you know, blessed and encouraged with your words of wisdom. So thank you so much for taking out your time and sharing the knowledge, the wisdom that you have acquired in your lifetime. So thank you so much for your time and blessing all of us. थैंक यू धनंजय जी, थैंक यू, Thank you so much. I thank all my viewers for coming and watching today's interview. Please do join me for next week with a new and guest. Dhananjay ji, you are doing a very yeoman service, Oh, and thank you so may much. you get all the success, and Thank you you do so much. something for music. Thank you. And Thank you it's so much. my blessings, and Thank you. Thank you so much. Thank you so much. okay. And I thank all my viewers for joining me. Stay safe, take care, and good night.